Hello dear students, I am Sukhdeep Singh, Physics lecturer, Government Senior Secondary School Pullar, District Shri Muktsar Sahib। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਸਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 5 ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਟਮ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਸ ਦੀਆਂ 5 ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫੇਸ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੇਸਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੈਚ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪਾਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਥ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਪੇਪਰ ਪਿੰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 2 ਪਿੰਸ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋ ਪਿੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿੰਸ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਪਿੰਸ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿੰਸ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਪਿੰਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਿੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਮਰਜੈਂਟ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਸ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਮਰਜੈਂਟ ਰੇ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿੰਸ ਉਤਾਰਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਲਸ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਪਾਥ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇਮਰਜੈਂਟ ਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਥ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਫਰੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤੀ ਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਮਲ 2। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਾਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਰਜੈਂਟ ਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ R1 ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई
एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है उसनों आर नाल लिखते हैं तो R1 लिख रहे हैं, ठीक है। ये दूसरे फेस ते एंगल ऑफ इंसीडेंस है तो इसनों I1 ਅਸੀਂ I2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, पर अंदरले एंगल ਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਨਾਲ रिप्रजेंट करांगे तो इसलिए इत्थे थोड़ी चेंज है, ਅਸੀਂ R2 लिख रहे हैं। तो बाहरला एंगल जिहड़ा है तो इसनों ਅਸੀਂ E ਨਾਲ लिख रहे हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो I एंगल ऑफ इंसीडेंस, E एंगल ऑफ इमरजेंस, तो या जो अंदर एंगल्स शो हो रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दूसरी सरफेस ते एंगल ऑफ इंसीडेंस, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इसनों ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ जी एंगल ऑफ प्रिज्म, इट इज़ A। क्लीयर। तो जिहड़ियां ये साइड्स है जिनके थ्रू रिफ्रैक्शन हो रही है प्रिज्म दियां, जिहड़ियां ये साइड्स है जी, तो इस साइड को ਅਸੀਂ कहने रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो जो इसका ये वाला एज है इसनों कहने रिफ्रैक्टिंग एज। तो ये जो ਅਸੀਂ इसनों प्रिज्म ਨੂੰ इस तरह रखा सी तो टॉप ते जो एंगल है इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिंग एज जिस फेस दे विचों लाइट पास की है वो है जी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हुण देखो असीं देखना है कि जो इंसीडेंट रे है जो इसका एक्चुअल पाथ सीगा उस तो कितनी डेविएट होगी इस दे विचों पास करन तो बाद। तो असीं उसका पाथ नूं एक्सटेंड करते हैं इंसीडेंट रे दे नूं, तो फिर इन्हां दोनों दे विच एंगल देखते हैं इंसीडेंट रे ते इमरजेंट रे दे विच कितना एंगल बन रहा है जिसनूं एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो ये देखो जी मैं इंसीडेंट रे दे पाथ नूं एक्सटेंड करता तो उधरों इमरजेंट रे दे पाथ नूं भी बैक एक्सटेंड करता। तो ये जो विचाले एंगल बन रहा है दिस इज़ एंगल ऑफ डेविएशन, इसनूं डेल्टा दे नाल डिनोट करते हैं, ठीक है जी। डेल्टा इज़ एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ जी बच्चों, हुण तुहानूं समझ लग गई होएगी कि प्रिज्म दे थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह होंदी है। तो हुण असीं प्रिज्म फॉर्मूले दी डेरीवेशन लई इस PPT का यूज़ करते हैं, देखो ताकि क्लीयर रे डायग्राम बन सके। तो ये असीं प्रिज्म अज्यूम कर रहे हैं, ये ट्रायंगुलर सैक्शन इसका शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म जिसनूं असीं ए दे नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं। तो इस दे उपर एक रे इंसीडेंट करवाने हैं तो नॉर्मल बनावांगे। तो ये देखो जी LN एक नॉर्मल है इस फेस के उपर, तो PQ इज़ इंसीडेंट रे, I इज़ एंगल ऑफ इंसीडेंस, R1 इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सारी चीज़ां मैं पहला भी शो कर चुके हैं। हुण देखो जी जो ये रे रिफ्रैक्ट करती है दूसरी सरफेस से जाके स्ट्राइक करती है तो ये नॉर्मल है MN। तो क्योंकि पहली सरफेस से ये रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही सी, ठीक है, फ्रॉम एयर टू ग्लास जा रही सी, बाहर जिहड़ी है वो रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, मतलब ग्लास है। तो रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है। हुण ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है तो सैकेंड सरफेस से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है। तो E इज़ एंगल ऑफ इमरजेंस, R2 इज़ एंगल ऑफ इंसीडेंस। इसनूं असीं R2 नाल लै रहे हैं। हुण देखो असीं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा शो करना है, ये रे दा एक्चुअल पाथ है तो ये इमरजेंट रे दा पाथ है। तो इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा एंगल बनेगा ये है जी एंगल ऑफ डेविएशन। देखो जी हुण असीं एंगल ऑफ डेविएशन शो कर रहे हैं, इंसीडेंट रे दे पाथ नूं एक्सटेंड कर रहे हैं अगे वाल डॉटेड, तो इमरजेंट रे दे पाथ नूं एक्सटेंड कर रहे हैं पिछे वाल। तो इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा एंगल बनदा है इट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन, इसनूं असीं डेल्टा दे नाल डिनोट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये इंसीडेंट रे है, ये इमरजेंट रे है। हाँ ये डायग्राम दोबारा मैं इत्थे शो कर रहा ताकि असीं एक डेरीवेशन कर सकीए। हुण तुहानूं इहदे विच ट्रायंगल दिखाई दे रही होएगी EQR, ये वाली ट्रायंगल जी EQR, ठीक है, जिहड़ी मैं शेड कर रहा। तो इस ट्रायंगल दे विच असीं गल करनी है कि जिहड़ा जो डेल्टा है आउटर एंगल है ट्रायंगल का वो सानूं पता है कि अंदरले ओपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होंदा है कि ये इंटीरियर एंगल है, इनके जिहड़े ओपोजिट एंगल्स है सामने के एंगल है इन्हां दोनों के सम के इक्वल होंदा है। तो डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है जी। हुण असीं एंगल इसनूं लिखांगे EQR तो इसनूं लिखांगे जी ERQ। तो डेल्टा इज इक्वल टू EQR प्लस ERQ। EQR ते ERQ असीं फाइंड करने हैं। देखो एंगल I ते आ सारा एंगल जिहड़ा है ये ओपोजिट एंगल्स है, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल I किस दे इक्वल होएगा, I इक्वल होएगा एंगल EQR प्लस एंगल R1। तो एंगल EQR किस दे इक्वल हो जाएगा,
एंगल ई क्यू आर इज इक्वल टू आई माइनस आर वन। तो इनकी जगह पर असी आई माइनस आर वन करांगे। इस तरह ही एंगल ई आर क्यू दूसरे फेस पर देखिए तो एंगल ई तो ये वाला सारा एंगल जोड़ा है ये ओपोजिट एंगल्स है। तो इस तरीके दे नाल ई किस दे इक्वल होएगा एंगल ये उपर वाला ई आर क्यू एंगल ई आर क्यू प्लस आर टू। ठीक है, तो असी फाइंड करना है जी एंगल ई आर क्यू। एंगल ई आर क्यू इक्वल हो जाएगा ई माइनस आर टू। ठीक है, तो डेल्टा किस दे इक्वल हो जाएगा फिर आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। असी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दें ई क्यू आर तो ई आर क्यू। ठीक है जी, तो हुण इहदे विच देखो जी नैक्सट स्टैप दे विच असी ब्रैकेट ओपन कर दें आई प्लस ई कर लें माइनस आर वन माइनस आर टू उन्होंने दोनों का माइनस कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। ठीक है जी, देखो मैनूं पता है जी बच्चों को ना ये स्टैप थोड़ा जिहा डिफिकल्ट लगता है तो मैं इस स्टैप को दोबारा तुहानूं समझा रहा कि 10th दे विच देखो असीं थ्योरम कीती सी कि जिहड़ा ट्रायंगल दा आउटर एंगल है ना ये वाला एंगल ये इस ट्रायंगल दा आउटर एंगल है। ठीक है, जिहड़ा आउटर एंगल है वो अंदरले सामने जिहड़े एंगल्स है उन्हां दे सम दे इक्वल हुंदा है। तो आ जिहड़े दो एंगल्स है इन्हां दे ये सम दे इक्वल होएगा। ठीक है, तो जिहड़ा डेल्टा है वो किस दे इक्वल होएगा जी डेल्टा इक्वल टू होएगा इस एंगल दे जिहड़ा आ वाला एंगल है। ठीक है, इनू असीं लिखांगे जी एंगल ई क्यू आर एंगल ई क्यू आर। ठीक है जी, प्लस ए वाला एंगल तो इसनू असीं लिखांगे इस एंगल नू ई आर क्यू। ठीक है, एंगल ई आर क्यू। देखो मैं दोबारा समझा रहा ध्यान नाल समझ लो इसनू। हुण ये दोनों एंगल असीं फाइंड करने हैं। ठीक है, इन्हां दोनों एंगल्स नू फाइंड करने लई की करना है जी आ आई ते आ सारा एंगल ये ओपोजिट एंगल्स है। ओपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे मतलब आई इस सारे दे इक्वल है पर ये दो एंगल्स का सम है अगे। ठीक है, इस एंगल का ते नीचे वाले एंगल का इहदा मतलब आई किस दे इक्वल है आई जिहड़ा है वो इक्वल है एंगल ई क्यू आर। ठीक है, प्लस आर वन। ठीक है, आर वन नीचे वाला एंगल सीगा तो इन्हां दोनों के सम दे इक्वल है दिस प्लस आर वन। तो एंगल ई क्यू आर किस दे इक्वल हो गया एंगल ई क्यू आर इक्वल हो गया जी आई माइनस आर वन। ठीक है, ये वैल्यू असीं इत्थे पुट कर देंगे जी इहदी जगह ते। इस तरह ई आर क्यू फाइंड करांगे दूसरे फेस तो। हुण एक क्वाड्रीलेटरल की गल कर रहे हैं ए क्यू एन आर। क्वाड्रीलेटरल दे विच सानूं पता है कि चारों एंगल्स का सम जिहड़ा है वो 360 डिग्री हुंदा है। आ दोनों तो नॉर्मल ही है जी, इत्थे तां आ तां 90 डिग्री का एंगल ही है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि असीं परपेंडिकुलर ड्रा कीते सी तो 90 के एंगल 180 हो गया जी सम। तो जे असीं एंगल ऑफ प्रिज्म ए वाला ए तो एन की गल करिए एंगल क्यू एन आर तो इन्हां दोनों का सम भी 180 होएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर आ वाला एंगल जी। ठीक है, इन्हां दोनों का सम कितना होएगा 180 इज इक्वल टू 180। इसनूं असीं नंबर 1 दे दिंदे हां। ठीक है, फ्रॉम द ट्रायंगल क्यू एन आर जे असीं इस स्मॉल ट्रायंगल नूं देखिए ए वाले तो इनदे भी तीनों एंगल्स का सम एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू ए वाला एंगल जी आर वन आर टू तो एंगल क्यू एन आर इन्हां दा सम भी कितना होएगा 180 होएगा। ठीक है, जैसे इक्वेशन 1 ते 2 नूं कंपेयर करिए तो क्यू एन आर सेम है जी 180 राइट हैंड साइड ते। तो इसका मतलब है जो एंगल ए है दैट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किस दे इक्वल हो रहा है आर वन प्लस आर टू। तो इन्होंने दोनों इक्वेशनस को कंपेयर करने तो बाद साडे कोल आ जांदा जी आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो जिहड़ा इक्वेशन असीं पिछे फाइंड कीती सी डेविएशन दी डेल्टा किस दे इक्वल सी आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। ठीक है, तो उस दे विच आर वन प्लस आर टू नूं असीं सैपरेट कर लिया सी तो आर वन प्लस आर टू की वैल्यू असीं सबस्टिट्यूट कर दिंदे आ ए। तो डेल्टा किस दे इक्वल आ जाएगा डेल्टा हो जाएगा जी आई प्लस ई माइनस ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर है। उस तो बाद में जी असी एंगल एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। देखो डेल्टा जो एंगल ऑफ डेविएशन है तो दूसरे पासे एंगल ऑफ इंसीडेंस दे विच ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो शुरू दे विच मैं तुहानूं एक एक्टिविटी दे राही डेल्टा शो कीता सी ते एंगल आई शो कीता सी। जे असी ओही डायग्राम बार बार ड्रा करिए एंगल चेंज कर करके आई की वैल्यू 20 30 40 50 60 70
रख के एक आई की वैल्यू चेंज करते जाइए तो डेल्टा की वैल्यू साढ़े को चेंज होती जाती है। तो असीं देखते हैं कि पहला डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज करती है एंगल ऑफ इंसीडेंस के वधन नाल, ठीक है, एक एंगल तक डिक्रीज करती है, उस तो बाद वो फिर इनक्रीज करन लग पैंदी है, ठीक है। तो आई दे इनक्रीज करन दे नाल एज द एंगल ऑफ इंसीडेंस इनक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, फिर वो मिनीमम हो जाता है जी, एक जगह पर जाके वो मिनीमम हो जाता है एंड दैन इट इनक्रीजेस। तो मिनीमम कित्थे जाके होंदा है जो साडा एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ इमरजेंस जिहड़े है वो इक्वल हो जाते हैं। तो उस एंगल नूं असीं कहने जी एंगल ऑफ मिनीमम डेविएशन, उसनूं डेल्टा दे नाल सबस्क्रिप्ट यूज किया जाता है जी डेल्टा एम, कि वैन आई इज इक्वल टू ई उस जगह ते की हुंदा है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, तो उसनूं असीं एंगल ऑफ मिनीमम डेविएशन कहने हैं। तो इसनूं कैपिटल डी एम दे नाल भी डिनोट कर दिंदे आ जो एंगल ऑफ मिनीमम डेविएशन है। हुण इत्थे ना जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनक्लूजन है जो सानू ग्राफ तो समझ आंदा है, सिर्फ ग्राफ तो, ठीक है, ग्राफ तो ते साडी जो असी प्रिज्म वाली डायग्राम बनाई सी, देखो जदों असी डेल्टा ते आई दे विच एक एंगल बनाने आ तो डेल्टा पहला डिक्रीज करता है फिर डेल्टा इनक्रीज करता है, ठीक है। एक एंगल ऑफ इंसीडेंस लई डेल्टा की वैल्यू मिनीमम है, ठीक है। उस जगह पर जाके असीं ये भी ऑब्जर्व किया है कि आई इज इक्वल टू ई हो जाता है, तो जो रे है जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट बिकम्स पैरल टू द बेस, कि वो बेस दे पैरल हो जाती है, मतलब वो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट पास करती है, इस बेस दे पैरल हो जाती है। हुण देखो जी भी ये सारा काम ना सिमिट्रिकल है, जे इसनूं असीं ध्यान नाल समझीए भी इस तरह क्यों हो रहा है कि जो डेल्टा डेल्टा एम हो रहा है कि वैन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम तो आई इज इक्वल टू ई हो रहा है, इस तरह क्यों हो रहा है जी, ये गल जी है इतने बहुत इंपॉर्टेंट है तो समझने वाली है, ठीक है। असी याद कर लें चलो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम आई इज इक्वल टू ई, ठीक है, क्योंकि फिर R1 इज इक्वल टू R2 भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, मैथमेटिकली, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन आई बाय साइन R1 है, ठीक है। दूजे पासे जो साइन ई डिवाइडेड बाय साइन R2 है, जे आई तो ई इक्वल हो जाएंगे तो R1 तो R2 भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये भी कंक्लूजन निकलेगा जी R1 इज इक्वल टू R2। हुण असीं इस गल नूं समझना है, देखो चलो ये असीं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक इंसीडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, इहदे ते भी नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। इस जगह ते इसनूं एक्सटेंड करते हैं, इस द एंगल ऑफ डेविएशन असीं शो करते हैं, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसीडेंस है आई, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है ई। देखो ये सारा कुछ सिमिट्रिकल है, असीं इस पासे पिन्ना लगाइयां सी, ठीक है, वो पिन्ना सानू पिन्स सानू इस पासों दिखाई दे रही सी। हुण जे उही असीं इधर पिन्स लगा के ते इधरले पासों देखदे तां वी सानू पिन्स इत्थे ही दिखाई देणीआं सी, मतलब जे असीं इनू एंगल ऑफ इंसीडेंस लैने आ तो साडा ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ठीक है। तो जे असीं इसनू एंगल ऑफ इंसीडेंस लवांगे ये साडा आई होएगा तो ये ई होएगा, मतलब ये सिमिट्रिक है, ठीक है ना। जे असीं इत्थे 30 डिग्री का एंगल लै रहे हैं, सपोज करो कि ये 30 डिग्री का एंगल है, सपोज करो असीं एक वैल्यू लै रहे हैं, ठीक है, असीं कोई मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर रहे, इत्थे 40 आ रहा है, ठीक है, साडा 40 डिग्री एंगल आ रहा है, तो जे असीं उसकी बजाय इधर 30 लै लांगे, मतलब इधरों रे इंसीडेंट करवावांगे तो इस साइड ते साडा एंगल 40 आएगा, ठीक है ना। ये प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के नाल भी असीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस तरह कि असीं रिफ्रैक्शन दे विच स्टार्टिंग ते पढ़दे हुंदे आ कि जे असीं इत्थे एक प्लेन मिरर प्लेस कर दईए, ठीक है, तो प्लेन मिरर नाल की होएगा कि लाइट अपना जिहड़ा पाथ है वो रीट्रेस करेगी, वो वापस जाएगी। इसका मतलब जे 30 डिग्री ते इंसीडेंस ते जो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है, इधर जो एंगल 40 डिग्री है तो 40 डिग्री ते भी सेम एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। तां ही देखो कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन है, सपोज करो ये वैल्यू है जी एंगल ऑफ डेविएशन की, असीं मिनीमम डेविएशन की गल नहीं करते कुछ टाइम लिए, ठीक है, कोई भी डेविएशन का एंगल है, मान लो जी ये एंगल ऑफ डेविएशन है, तो चेक करो इस एंगल ऑफ डेविएशन लई जिन्ना भी है साडे कोले दो वैल्यूज आ रही हैं जी एंगल ऑफ इंसीडेंस दियाँ I1, ठीक है, तो दूसरे पासे E1,
मतलब एक इस साइड तो दूसरी दूसरी साइड तो। जे असीं इसनूं I1 लै लांगे तो ये E1 होएगा, मतलब ये दोनों एंगल्स इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। तो एक ही वैल्यू आती है जी मिनीमम डेविएशन की, जो असीं ये एंगल इनक्रीज करते जाते हैं तो एक एंगल से जाके ये मिनीमम हो जाता है, ठीक है। जो ये मिनीमम हो जाता तो आ दोनों वैल्यूज मैच कर जाती जी, क्योंकि ये आई है ये ई है। जे असीं आई वध रहा है, ठीक है ना, इनक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा डिक्रीज कर रहा है। हुण एक जगह से जाके आई तो ई इक्वल हो जाते हैं, उस जगह पर ये जी वैल्यू है वो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम हो जाती है। गल समझ लगी तुहानूं कि ये दोनों चीज़ां जिहड़ियां इंटरचेंजेबल है, आई तो ई जिहड़े है वो इंटरचेंजेबल है। हुण इत्थे एक होर पॉइंट समझण वाला है कि डेल्टा एम ते जाके दोनों इक्वल क्यों हो गए, ठीक है। चलो ये भी चीज़ असीं सपोज करते हैं, ठीक है। मान लो जी हुण डेल्टा असीं मिनीमम फाइंड कर लिया, वो साडे डेल्टा मिनीमम की कोई वैल्यू आ रही है जी। मान लो हुण ये डेल्टा नहीं गा, ये डेल्टा मिनीमम है, तो डेल्टा मिनीमम साडा आ रहा जी 20 डिग्री, असीं सपोज कर लेंगे, ठीक है। हुण सपोज करो इत्थे साडा एंगल है जी, कोई भी एंगल सपोज कर लो, चलो 35 डिग्री ते डेल्टा जिहड़ा डेल्टा मिनीमम आ रहा है, ठीक है। चलो इत्थे 20 डिग्री है डेल्टा मिनीमम, कोई भी वैल्यू होगी, चलो डेल्टा मिनीमम ही है, कुछ भी है, ठीक है। इत्थे 35 डिग्री है तो इत्थे साडा एंगल आ रहा जी 45 डिग्री, ठीक है। इत्थे डेल्टा मिनीमम आ रहा है, असीं अज्यूम कर रहे हैं। तो जो प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट करने असीं कहने आई तो ई इंटरचेंजेबल है। जे ए आई हो गया 45 हो गया, इधर 35 है, तो हुण इहदा मतलब 45 ते डेल्टा मिनीमम आ रहे हैं, इसका मतलब आई की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है ना। पर प्रैक्टिकली जो असीं देखते हैं वो ये चीज़ पॉसीबल नहीं है, ठीक है ना। इक्को ही एंगल ऑफ इंसीडेंस से साडे कोल जो मिनीमम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये तां ही हो सकती है जे आई ते ई जिहड़े है दोनों एंगल्स जिहड़े है वो इक्वल होंगे, तो ये भी 35 होएगा, ठीक है ना। भावें असीं इस साइड तो देखिए, ठीक है, भावें असीं इस साइड तो देखिए, जिस साइड तो मर्जी देखिए, भावें असीं लाइट नूं इस साइड तो इंसीडेंट करवाइए तो इस साइड तो इमर्ज होवे, या इस साइड तो इंसीडेंट करके तो इस साइड तो इमर्ज होवे, ठीक है ना। तां ही देखो इत्थे लिखिया होया जी I1 E1 E1 I1, तो जो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम है तो आई इज इक्वल टू ई है, तो जो आई इज इक्वल टू ई है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R1 इज इक्वल टू R2 है, ठीक है। तो फिर जो R1 ते R2 है वो भी इक्वल हो जाएंगे। क्लीयर है जी। हुण इहदे विच एक होर कंक्लूजन है कि जो ये चीज़ हुंदी है, जो एंगल ऑफ मिनीमम डेविएशन हुंदा है, तो जी रे है जो इनसाइड रिफ्रैक्ट कर रही है प्रिज्म दे विच वो पैरल हो जाती है बेस से, ठीक है। जो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम या डी एम हो जाता है तो आई इज इक्वल टू आर हो जाता है, तो R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है। हुण देखो हुण इस दे नाल की होएगा जी, जिहड़ी असीं इक्वेशन लिखी सीगी कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, असीं लिखिया सी A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 इज इक्वल टू R2 है, दोनों नूं असीं R लिख दिंदे हां, तो R प्लस R, A किस दे इक्वल हो जाएगा 2R दे, तो 2R इज इक्वल टू A, R की वैल्यू हो जाएगी A डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है जी। उस तो बाद जो डेल्टा एम है जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये असीं फॉर्मूला लिखिया सी कि A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, ठीक है। ए तो ए ही है, जो डेल्टा की जगह असीं डी एम करता एंगल ऑफ मिनीमम डेविएशन, ठीक है। तो आई देखो ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई है, क्योंकि डेल्टा की जगह तो डी एम लिखता सी एंगल ऑफ मिनीमम डेविएशन, आई प्लस ई हो जाएगा आई प्लस आई, क्योंकि ई इज इक्वल टू आई है, तो ये हो जाएगा जी 2i। जे दे विच असीं आई फाइंड करिए तो आई हो जाएगा जी ए प्लस डी एम या डेल्टा एम कह सकते हैं इसनूं डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये समझ लग गया जी हुण किस तरह बनया कि ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई है, डेल्टा की जगह तो डेल्टा एम या डी एम लिखता, तो आई प्लस ई की जगह तो आई प्लस आई हो गया इज इक्वल टू 2i, तो आई की वैल्यू असीं फाइंड कर लीता, ये साडे कोल एक्सप्रैशन बन गया जी। जे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की असीं गल करिए तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किस दे इक्वल हुंदा, उसनूं असीं N21 लिख सकते हैं, N2 बाय N1, मतलब डेंसर मीडियम का N2, रेयर मीडियम का N1, तो N2 डिवाइडेड बाय N1, ये हो जाएगा जी साइन आई बाय साइन आर, क्योंकि R1 ते R2 इक्वल हो गए साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई की वैल्यू असीं सबस्टिट्यूट कर दिंदे आ उपरली इक्वेशन दे विचों चक के, आ वैल्यू जी ए प्लस डी एम बाय 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू असीं इक्वेशन नंबर 5 तो पुट कर दिंदे आ जी ए बाय 2, तो साइन ए बाय 2, जिहड़ा ये फॉर्मूला बनया जी ये वाला फॉर्मूला, इसनूं असीं कहने जी प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। तो जे असीं
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट कर लिए, एंगल ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट कर लिए, तो ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਿਨ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਵਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲਈਏ, ਥਿਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡੀਐਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਥ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡੀਐਮ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਆਈ ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਆਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ n21 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ dm ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ na ਮਾਈਨਸ a। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ dm ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਿਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫॉर स्मॉल एंगल्स sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ਤਾਂ sin थीटा ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ਵੀ ਅਸੀਂ थीटा ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੂ ਨੋਟ ਡੈਵੀਏਟ ਲਾਈਟ ਮਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਡੈਵੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ MCQs ਹੈ। द एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसीडेंट रे इज कॉल्ड। ठीक है, देखो ऑप्शंस आ रही हैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, एंगल ऑफ इंसीडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, की आंसर होएगा जी इसका, मैं कुछ सैकेंड ਲਈ वेट कर रहा। तो इसका आंसर होएगा जी एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट है एज द एंगल ऑफ इंसीडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसीडेंस इंक्रीज करता तो एंगल ऑफ डेविएशन ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रिमेन सेम ਜਾਂ फर्स्ट डिक्रीजेस एंड दैन इंक्रीजेस। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਪਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ एंगल ऑफ इंसीडेंस प्लॉट कर रहे हैं, तो इस साइड पे एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह का ग्राफ बन गया है। पहले एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, तो फिर वो वध रहा है। ठीक है, तो इत्थे जाके जो आई तो ई इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन जोड़ा है वो डेल्टा एम हो जाता है। ठीक है जी, तो दिस वाज द टॉपिक प्रिज्म फार्मूला। आई होप कि तुहानू जोड़ा है वो समझ लग गया होएगा। ठीक है, तो जो इस दे विच डेरीवेशन सीगी, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, a ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ i ਪਲੱਸ e। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਡੈਲਟਾ ਚੇਂਜਸ ਟੂ ਡੈਲਟਾ m, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ m ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ i ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ कि when I is equal to E, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M। ठीक है, इस चीज़ ਨੂੰ मैथमेटिकली समझण ਦਾ एक होर ढंग है। देखो ये चीज़ जिहड़ी है ਅਸੀਂ होर एक मैथमेटिकल वे ਦੇ ਨਾਲ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A है। जे ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ, I ਨੂੰ रूट I, ठीक है, माइनस रूट E, इसका कर दिए स्क्वायर। ठीक है, तो जो स्क्वायर ओपन करांगे तो रूट आई का स्क्वायर हो जाएगा आई, रूट ई का स्क्वायर हो जाएगा ई, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, आई प्लस ई बन जाएगा, माइनस 2a भी आएगा, माइनस 2 रूट आई रूट ई, एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी तो उसनों असीं इहदे विच ऐड कर देंगे 2 रूट आई इंटू रूट ई। ठीक है, माइनस ए। ठीक है, हुण देखो जी, जे आई ते ई इक्वल नहीं है, सपोज करो आई ते ई इक्वल नहीं है, इफ आई नॉट इज इक्वल टू ई,
ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ i ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ e ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਜੇ e ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ i ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਲਟਾ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ when this bracket is 0। तो रूट i ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ रूट e ਦੇ, ਮਤਲਬ i ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ e ਦੇ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ is minimum that is equal to delta m when this bracket ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ रूट i is equal to रूट e, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ i is equal to e, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਵੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ। देखो प्रिज्म के एंगल तो सिमिट्री तो, ठीक है, प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट तो भी असी यही एक्सप्लेन किया है, आई इज इक्वल टू ई, तो इतों भी असी यही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई होप कि तुहानू टॉपिक जिहड़ा है वो समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।